So we are just going to discuss projection vector. Suppose there is some psi vector is there, and there is another vector that is, let's say, phi vector. So what we want, we just want to project psi in a direction of phi. So this is very interesting. What we want to project psi in a direction of phi. Then what will be the output? What is the output there? So what will happen? So hence I need a vector along the direction of phi. So I will make a projector operator that will give the projection of any another vector in a direction of phi, and this can be written as phi phi. Are you getting my point? So this is your kit and this is your bra. The tail is just going to meet with each other. So this kind of thing, this is one sort of operators. We will also discuss operator in this form also. Maybe in upcoming examination, you will find that operator will come into this form also. Okay. So what we have, projection operator is equal to phi and phi. Now, if this projection operator is going to operate on psi, if this projection operator is going to operate on psi, then what will happen? You have phi, phi, and this whole thing is going to operate on psi. And you can assume these two are one. Don't worry. You can assume these two are one. And actually, this is a identity. So one will be remain same thing. What you will get? You will get phi, phi, and psi. Are you getting my point? And what is this particular thing? Scalar product. What is this Scalar particular product. thing? Is a some Scalar scalar number. Inner product. Scalar. Inner product. Very good. This particular thing is some inner product. So what you will get? P will object on psi. We will get phi and psi. This is some number. Let's say this number is some C, and you have phi. So you have C phi. So this vector along the direction of phi is something C phi. And obviously this projector operator must be follow this relation. If you project phi operator on phi, suppose this is my phi operator, suppose the projection of phi in a direction of phi will be always the same vector, isn't it? होना चाहिए ना? A वेक्टर का प्रोजेक्शन में A पर लूं तो यही वेक्टर तो मिलेगा. So if we want to do this thing, then we will, if we are going to operate on phi, then obviously what I need the same vector. So that will ensure that this phi must be normalized. तभी तो हो पाएगा. Are you getting my point or not? आप इस चीज को समझ पा रहे हो? तो ये नॉर्मलाइज्ड वाला पॉइंट समझ में आया। भाई आपके पास एक फाई वेक्टर है और फाई वेक्टर को फाई के ही डायरेक्शन में आपको प्रोजेक्ट करना है. क्या मिलेगा? फाई तो मिलेगा. यस सर। ठीक है. तो मैं फाई के प्रोजेक्शन ऑपरेटर को फाई पर ही ऑपरेट कर रहा हूं, तो मुझे ये मिलेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी सर। और ये हमारा इक्विवेलेंट टू फाई होगा. इसकी गारंटी कब होगी? जब ये हमारी नॉर्मलाइज होगी. अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता है. नहीं हाँ यस सर। है ना? सो व्हाई you always try to normalize the vector when you are using it as a projection vector. This is very important. Otherwise, this thing is not going to happen. This thing is not going to happen. Okay? Because you have to ensure that if you are projecting one vector on itself, on its own direction, then you will get the same vector. This is very important. Now,
दिस थिंग इज नॉर्मलाइज वेक्टर, ठीक है। और इस चीज को हम अगर दिमाग में रख रहे हैं, देन वी हैव टू do some basic property of projection vector. So what is this? What is the eigenvalue of projection vector? This is very important. So what you have, you suppose you have projection vector that is phi. If you are going to operate p square, then what will happen? Phi, and again you will get phi. So this can be written as phi and phi. ऐसे लिख सकते हैं ना? देखो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ज्यादा कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो उसमें, No, sir. ठीक है ना? No, sir. ओके, नाउ दिस phi and phi is what? 1. 1. One if One. it- This phi and one phi if is 1. So what you will get? You will get p square phi. So that means you have p square is equal to p. Similarly, you can have operate it n time. What you will get? You will get p to the power n is equal to p. नहीं, p क्यूब करोगे तो भी p आएगा. So from here you can easily write this particular thing. P to the power n minus p must be equal to 0. So you have p or p to the power n minus 1. Identity must be equal to 0. So projection operator की eigen value क्या हो जाएगी? From here, the eigen value of projection operator is? बताइए. UN1. Very One good. The idea. eigenvalue of projection operator is either 0 or 1. Okay? So it may be either 0 or it may be either 1. So this projector operator is very, very important into quantum mechanics. This is very, very important. एंड इन जनरल जैम के बच्चे को बहुत ज्यादा इस पर माइंड नहीं लगाना है. आपको जितना समझ में आ रहा है दैट इज मोर देन एनफ. आप होप समझ में आ रहा हो, क्योंकि कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं है, बट आपके कोर्स में ये वाली पार्ट उतनी नहीं है. ओके, सो जस्ट यू कैन जस्ट लर्न सी द स्टोरी, दैट इज मोर देन एनफ. एवरीवन इज कंफर्टेबल है ना? Yes, sir. हाँ, तो इसमें Yes, मत पड़ sir. जाना कि अरे ये तो Yes, सब तो कभी देखा ही नहीं है. डोंट वरी, ठीक है, लेकिन वो सारा समझ में आएगा. बट एग्जाम के लिए आपको जैम के एग्जाम के लिए बहुत प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं, बट यस जस्ट एएफआर के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो अपने अपने लिमिटेशन को देख करके ही समझने की कोशिश करो. ठीक है, मेरा काम सारी चीजों को देना है, कितना लेना है वो आप डिसाइड कर लो. ठीक है, Okay, sir. ओके, sir. Sir, यस. P operates on psi means projection of psi along phi vector. प्रोजेक्शन ऑफ साई अलोंग फाई. Phi. Okay. जिसका प्रोजेक्शन ऑपरेटर बनाओगे, दूसरा वेक्टर उसके डायरेक्शन में ऑपरेट होगी. ओके, Oh. ठीक है, Hmm. एग्रीड और नॉट? Yes. Yes. Chalo. Now, so there is one very important relation, is completeness relation. And this completeness relation is actually, I can say, soul of quantum mechanics. अगर आप इसे समझ जाओ तो आपको आपका 80% काम यही हो गया. What you have, if you have summation over pi, and this is all about pi is your projection operator, and summation over I, if this belongs to identity matrix, then, and if you are talking about pi, so not only for one, and this pi will be not made from one vector, this may be written as something like pi I summation over I must be equal to identity matrix, and I will be go
to 1 to n. All possible value of I is there. If any set of vectors, this is very important. If any set of vectors will satisfy this particular relation, if any set of vectors will satisfy this particular set of this particular relation, then it is identified as completeness relation. ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है. And if I am talking about this completeness relation, if I am going to open it, then what you will get? Something like phi 1 plus phi 2 up to phi m, and then you will go for phi n, and this belongs to identity, and this can be only possible. Listen my word very carefully. This will be only possible in general. Phi n, phi m is delta nm. Wow, orthonormality. Are you getting my point? सर लास्ट में इंडेक्सेस क्या लिखे हुए हैं? n Phi- और n. m यहां पर m है. अरे 1 1 2 2 3 3 m हाँ, m n n. अलग दिख रहे थे इसलिए कुछ हाँ, नहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं सर, क्लियर है अभी. क्लियर है? सो ये सेटिस्फाई होने के पीछे की जो रीजन है, वो रीजन क्या है कि आपका फाई एन और फाई एम क्या होगा? दे शुड बी व्हाट? ऑर्थोनॉर्मल इन नेचर. और प्रोजेक्शन ऑपरेटर है हर एक कोई, ये एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, ये एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, ये एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर है. आपके स्पेस में जितने भी वेक्टर हैं, उन सारे ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर को लेकर के आप जब उसे चेक कर रहे हो, जब सबको सम ऑफ कर रहे हो, व्हाट यू आर गेटिंग आइडेंटिटी. इसका भरपूर मजा आप ले सकते हो अपने क्वांटम मैकेनिक्स को सॉल्व करने में. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट अ वेक्टर. You can have infinite number of vectors, but thing is that what are the basis vector? Same vector को हम किस basis vector में रखें? And that basis vector must be always orthonormal in nature. So what this completeness relation will do? This completeness relation will help you to write your vector in a suitable orthonormal basis. सर के ऊपर से जा रहा है क्या? कई बार फिर बोलना था, समझ में आया. हाँ सर. मैं ये कह रहा हूं, आपके पास कोई भी एक साई वेक्टर है, ठीक है जी? ये साई वेक्टर को क्वांटम मैकेनिक्स में क्या करना होगा? आपको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सम ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स में लिखना पड़ेगा. ये आपको हर जगह करना होगा. तो जिसके भी लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिखना चाहते हो, उसको लिखने में आपको जो हेल्प करेगा, वो कौन हेल्प करेगा? वो कंप्लीटनेस रिलेशन हेल्प करेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कैसे हेल्प करेगा वो देखो. सपोज आई हैव अ साई वेक्टर, ठीक है? एंड व्हाट आई वांट, I just want to write this psi vector in a orthonormal basis of phi n और phi m. इसको मुझे उसमें लिखना है, क्योंकि मेरी ये नीड है कि मैं उसके बेसिस में लिखूं. क्यों उसके बेसिस में लिखना है? आई विल डिस्कस ड्यूरिंग द पोस्टलेट्स, डोंट वरी.
But the main challenge is that I want to write this psi in a linear combination, in a superposition of different orthonormal bases. That will created by phi 1, phi 2, phi 3 up to phi n. Then what I can do, I can write my psi is equal to identity into psi. लिख सकते या नहीं लिख सकते? Yes. Yes, sir, possible. लिख सकते या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। आइडेंटिटी तो बहुत अच्छी सी मैट्रिक्स है भाई, बहुत अच्छी ऑपरेटर है। वो बेचारा कुछ नहीं करता, आपको जैसा है वैसा ही रहने देता है ना? Yes, दिस इज sir. ऑल अबाउट आइडेंटिटी ऑपरेटर. So psi is equal to I psi, and what you can do, you can write this psi can be written as, चूंकि ये आइडेंटिटी है, and phi I लिख सकते हो I को, अगर phi I कंप्लीटनेस रिलेशन बना रहा है तो, है या नहीं? यस सर। एंड psi I को मैंने ये लिखा, psi को psi रहने दिया. What will happen? Wow, it's a wonderful thing. This psi is equal to phi I psi is nothing but something ci phi I. Wow. Isn't it? What is ci? Ci is phi I psi. So what you can write? You can write your psi in a linear combination of phi i's, and all these phi i's will be orthonormal in nature. So what you can do? You can find a suitable basis. You will check they are making the completeness relation or not, and you can write any vector in a basis of that orthonormal vectors. क्लियर है ये? अब ये दूसरी बात है कि ये बेसिस हम कैसे चूज करेंगे, दैट इज डिफरेंट इशू. कि भाई कौन सा बेसिस लेना है ये हम कैसे चूज करेंगे, दैट विल डील विद द पोस्टुलेट्स. वो आपको पोस्टुलेट्स डील कर देगा. लेकिन आप देख रहे हो कितनी बड़ी बात हो गई. आपने एब्स्ट्रैक्ट डिफरेंट डायरेक्शन चूज कर लिए इस वेक्टर के, और कितने डायरेक्शन आपने चूज किए? n नंबर ऑफ डायरेक्शंस. और वो सारे n नंबर ऑफ डायरेक्शन आपस में क्या है? ऑर्थो नॉर्मल है. And the beautiful part of this completeness relation is that you will not lose any information of the system if your basis vector will satisfy completeness relation. Don't worry, हम सब समझ पाएंगे. इंफॉर्मेशन नहीं लूज हो रहा है, इसका क्या मतलब है ये भी हम देखेंगे. आप अभी इसको टिक करके रखो. जब मैं पोस्टुलेट्स में आऊंगा, पोस्टुलेट्स 3 में आऊंगा, तो आप इस क्वेश्चन को फिर से रेज करना. ठीक है? कौन रेज करेगा इस क्वेश्चन को उस समय ड्यूरिंग द पोस्टुलेट्स 3? नाम बताओ. सर मैं भूमिका से. हाँ, भूमिका. भूमिका रेज करेगी. ठीक है, तो भूमिका तुम्हारी ड्यूटी है. ठीक है कि सर आप क्या क्वेश्चन रेज करोगे? आप ये रेज करोगे जब मैं पोस्टुलेट 3 बताऊंगा कि सर कंप्लीटनेस रिलेशन किस तरह से इंफॉर्मेशन लूज नहीं होने देता है. ठीक है? यस सर. ओके, चलो. Sir, So, sir, I have a small doubt. Sir, outer product of phi I is identity matrix, right? क्या? Sir, outer product of phi I summation हम लोग लगाए तो identity matrix आया है. तो सर ये आपने बोला कि ये तब पॉसिबल है जब इनर प्रोडक्ट ऑफ phi NM ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन होगा, तभी ये चीज होगा. तो सर ये हम लोग कैसे देख पा रहे हैं कि इनर प्रोडक्ट ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए तभी आउटर प्रोडक्ट आइडेंटिटी आएगा?
ये तो भाई ये तो डेफिनेशन है आपकी, आप नहीं समझ रहे हो, आप डेफिनेशन पर क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? दिस इज योर डेफिनेशन, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और ये उन्हीं वेक्टर के लिए पॉसिबल होता है जो ऑर्थोनॉर्मल है। हाँ सर, ये कैसे हम लोग देख पा रहे हैं सर कि जो ऑर्थोनॉर्मल है उन्हीं पे ये कंडीशन यही अप्लाई है उन्हीं क्या? पर ये भाई, आप ऑब्जर्वेशन से देखोगे और कैसे देखोगे? ओ, ऑब्जर्वेशन। ओके सर। अभी एक एग्जांपल करके देख लेते हैं ना, डोंट वरी, ओके एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, चलो तुम्हारी बात को ही लेकर के आते हैं। दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना? ये हो रहा है तो ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, डोंट वरी, ओके। ठीक है। अब ये ओके। इतना ब्यूटीफुल थिंग है ना कि इसके अंदर सारी चीजें आ गई, समझ रहे हो? जब कोई आदमी क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाता है तो इसे बिल्कुल भूल जाता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता है कि ये क्या है। तो चलो लिखा करके आगे बढ़ गए, लेकिन यही सारा चीज है, सारा खेल तो यही है। क्योंकि हमें बार बार ये काम करना पड़ेगा, बार बार ये काम करना पड़ेगा। ये दूसरी बात है कि आप इसको इतनी बार करते हो कि ये आपके लिए ट्रिवियल हो जाता है, तो आप इसको भूल जाते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो? ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि घर में अपनी मदर का जो सुबह खाना खिला रही है, पानी पिला रही है, उठा रही है, ये वो आपको ट्रिवियल लगता है, तो उनका काम आप छोड़ देते हो, बोलो चलो यार ठीक है, तो चलता ही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो यस आपके सर। दिमाग में भी नहीं रहता है कि यार मम्मी ने इतना काम किया था, तब मैं अभी और स्कूल जा रही हूँ। जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो भी आपको याद नहीं रहेगा, डोंट वरी, ठीक है, क्योंकि वो ट्रिवियल है। आप तो रोज सुबह से उनको देख रहे हो ये काम करते हुए, जब से जन्म लिया है करते हुए देख रहे हो, ट्रिवियल है। बट उसके बगैर आपकी एग्जिस्टेंस नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। यस सर। Yes, sir. है ना, आप मानो या ना मानो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? भाई आप सपोज करो किसी रनिंग में गए, वहां पर आप फर्स्ट आ गए, तो हो सकता है कि आप बोलो यार ये तो मेरे कोच के कारण हुआ है, बट उसका बेसिक फंडामेंटल ये है कि भाई जब आप 2 साल के थे, 3 साल के थे, तो बहुत आपको बहुत अच्छे से खाना पीना खिलाया गया था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज फंडामेंटल ऑफ द फंडामेंटल। मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि आप इसकी वैल्यू समझने की कोशिश करो, है ना। Yes, sir. दिस इज वेरी वेरी फंडामेंटल ऑफ द फंडामेंटल। लेकिन ये इन जनरल आपको इतना आसानी के साथ मिल जाएगा कि आप इसकी वैल्यू ही बोले यार ये तो चलो ये ठीक है, इसका कोई यूज, बट एक्चुअली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाता हूं। सपोज आई हैव टू वेक्टर, 1 1 वेक्टर ले लो और 1 0 वेक्टर ले लो, ऐसे दिखा सकते हैं ना। और इसे नॉर्मलाइज कर लेते हैं, तो 1/√2 यहां पर डाल दें, ठीक है जी। सपोज दिस इज माई φ1, दिस इज माई φ2। अब ये बताओ φ1 और φ2 दोनों बेसिस वेक्टर बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? दोनों बेसिस वेक्टर हैं या नहीं, हो सकते या नहीं हो सकते? Yes, यस, व्हाई? व्हाई? Independent. because they are हाँ, दे आर, बताओ 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 बताओ। ऑर्थोनॉर्मल। ए, ऐसे मत बोला करो। दे आर व्हाट? बेसिस वेक्टर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? लीनियरली इंडिपेंडेंस। लीनियरली इंडिपेंडेंट, वेरी गुड। सो आप यहां चेक कर सकते हो, आप यहां आराम से चेक कर लेना, φ1 इज इक्वल टू 1, φ2 इज इक्वल टू ऑल्सो 1। आप चेक कर लेना, ठीक है। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। 1 1 C1 कर दो प्लस C2 1 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। सो C1/√2 C2 इज इक्वल टू 0 एंड C1 इज इक्वल टू 0। इससे C1/√2 actually is equal to 0. Then you have C1 is equal to 0, C2 is equal to 0. So what you have, you will create a basis vector out of these two वेक्टर। मैं प्लेन की बात कर रहा हूं, मैं प्लेन पर कोई एक वेक्टर डिफाइन करूंगा, तो उस वेक्टर को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं, बिकॉज दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। Yes, आर यू sir. गेटिंग माई पॉइंट? नाउ अब बात यह है क्या ये कंप्लीटनेस रिलेशन बनाएगा?
क्या ये कंप्लीटनेस रिलेशन देगा या नहीं देगा, इसकी बात करते हैं। ऑब्वियसली phi1 इज इक्वल टू 1, है ना, सॉरी phi1 की जो वैल्यू है, दिस phi1 इज ऑल्सो अ प्रोजेक्शन ऑपरेटर, phi2 इज ऑल्सो अ प्रोजेक्शन ऑपरेटर, डोंट वरी। सो बट कंप्लीटनेस रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, phi1 प्लस phi2 इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए, यस या नो? Yes, sir. यस। सो Yes, phi1 क्या हो जाएगा, 1, सॉरी दिस इज 1 0 एंड दिस इज 1 0 प्लस 1/√2 1 1 1/√2 1 1, और यहां जब आप देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 0 0 0, और ये वाला मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, 1/2 1/2, है ना, 1/2 1/2। क्लियर है ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0, 1/√2 1/√2 हाफ, 1/√2 1/√2 हाफ, 1/√2 1/√2 हाफ, 1/√2 1/√2 हाफ, दोनों को ऐड करो, क्या मिल रहा है, दैट इज नॉट एक्चुअली आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो क्वांटम मैकेनिक्स में ये दोनों वेक्टर बेसिस वेक्टर हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. वहीं पर अगर मैं ऐसा ले लूं अपने बेसिस वेक्टर को, सर हम्म, इफ दे आर नॉट इक्वल टू आई, सर इसका मतलब सर हम क्या बोल सकते हैं? कि आइडेंटिटी ऑपरेटर नहीं है। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या मतलब होता है, प्रोजेक्शन नहीं ले सकते सर हम इसका? नहीं नहीं, प्रोजेक्शन तो ये कर ही सकता है, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मलाइज है, ये भी प्रोजेक्शन दे सकता है, लेकिन ये वेरी गुड, आप कुछ अच्छी चीज पूछ रहे हो, वेरी गुड। हर एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर को आप ऐड करोगे तो वो कंप्लीटनेस रिलेशन नहीं देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी सर। ये भी प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, ये भी प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों मिलकर कंप्लीटनेस रिलेशन नहीं दे रहा है। तो मेरा साई को इनकी बेसिस में लिखने का कोई खास फायदा क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लूज हो जाएगी आपकी। आर यू गेटिंग माय तो यहाँ हम पॉइंट? ये बोल सकते हैं कि कुछ सर लूज हुआ है सर, यहाँ पर कुछ चीज ऐसी है जो छूट गई है। जो आपको पता नहीं चल पा रहा है सिस्टम का। ओके, यस सर। आर यू लेकिन गेटिंग सर माय हम पॉइंट? सकते हैं, जी सर। क्या मतलब लिखना पॉसिबल है, लिखना क्या पॉसिबल है? मतलब कंप्लीटनेस रिलेशन भी ये फॉलो नहीं कर रहा है तो भी हम अरे भाई रिप्रेजेंट उसके कर बेसिस में तो लिख ही सकते हो, क्योंकि वो लिनियरली इंडिपेंडेंट है। बेसिस के लिए क्या जरूरी है, लिनियरली इंडिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंसी। तो लिख हाँ लो, ये बेसिस में तो लिख ही लोगे, यस सर। ठीक है। लेकिन बेसिस में लिखने के बावजूद भी आपके काम का नहीं, यार यू गेट, भाई दुनिया में इतनी वेक्टर्स होंगे, इतने ज्यादा वेक्टर्स होंगे, आपको काम वाले वेक्टर से मतलब है ना, हाँ सर। आप समझ पा रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, ठीक है। ये इन जनरल कोई टीचर डिस्कस नहीं करते हैं कहीं भी नहीं, इन जनरल बहुत रेयर जगह पर होती होगी डिस्कस, ठीक है। हाँ सर, सही बोल रहे। बट आप इसकी वैल्यू समझने की कोशिश करो। अब सपोज करो मैं एक वेक्टर ले लूं phi1 1 0 और phi2 0 1। अब ये दोनों ऑर्थोगोनल भी हैं, नॉर्मलाइज भी हैं, और लिनियरली इंडिपेंडेंट भी है, क्लियर है ना। ऑर्थोगोनल है तो लिनियरली इंडिपेंडेंट तो होंगे ही होंगे, यस। तो 5 to Yes, 0 sir. आ रहा है ना? हाँ 0 1, ऑब्वियसली 0 1, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो अब हम जरा चेक करते हैं phi1 प्लस phi2 क्या होता है, 1 0 1 0 0 1 0 1
क्या हो जाएगा 1 0 0 0, ये क्या हो जाएगा 0 0 0 1, व्हाट विल बी दिस वैल्यू 1 0 0 1। समझ में आया? तो अगर आपके पास चॉइस है 1 0 और 1/√2 1 1 की, और दूसरी चॉइस है 1 0 एंड 0 1 की, आप किसे लेना चाहोगे क्वांटम मैकेनिक्स में एज ए बेसिस वेक्टर? सेकंड 1 0 1 0 एंड 0 1 को, है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो? यस Sir, क्योंकि ये कंप्लीटनेस रिलेशन बना रहा है। हाँ बताओ। sir, every orthonormal set of vectors हम्म satisfy the completeness relation. yes yes very good, every orthonormal set of vectors, ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स। अब कल की क्लास को मैं अभी कोरिलेट करूंगा आपको, डोंट वरी। कल हमने ऑपरेटर के आइगन वैल्यूज निकाले थे, निकाले थे ना? Yes, sir. Yes, sir. और Yes, आइगन sir. वेक्टर्स भी निकाले थे। Yes, sir. यस Yes, sir. और वो जो आइगन वेक्टर्स निकाले थे, कैसे आइगन वेक्टर्स निकाले थे? ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोनॉर्मल। Normal. अब वो sets. ऐसा ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर क्यों निकाले थे? कंप्लीटनेस Satisfy रिलेशन। वेरी completeness गुड relation. वेरी गुड, बिकॉज दे शुड सेटिस्फाई कंप्लीटनेस रिलेशन। So then we can expand psi as a linear combination of is a those or the orthonormal linear combination of 5 1 5 as 2 a 5. linear combination of those orthonormal set of eigenvectors. यस आपका काम ही यह है क्वांटम मैकेनिक्स में, आप एक सिंपल सा एक लाइन लिख देना अपने कमरे में आज, ठीक है? क्वांटम मैकेनिक्स में मेरा काम यह है कि किसी भी वेक्टर को सुटेबल ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में लिखना, ठीक है? आप अगर ये काम कर लो तो सारा काम कर लोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Okay. So orthogonal as well as normalized. नॉर्मलाइज तो होगा तभी तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर की तरह काम करेगा। Hmm. ऑर्थोगोनल होगा और नॉर्मलाइज होगा तभी वो कंप्लीटनेस रिलेशन फॉलो करेगा। Okay. ठीक है? अब ये सारे देखो कितना बढ़िया से कनेक्टेड है ना? Okay, sir. Yes. So the sum over I pi equal to I, we cannot prove that relation because it is a definition. इट इज अ डेफिनेशन, एक्चुअली इट इज अ वन टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये तो बड़ा एब्स्ट्रैक्ट है ना, ये पूरा का पूरा नोटेशन ही एब्स्ट्रैक्ट है। So sum of projection vectors. सम ऑफ Sum of- प्रोजेक्शन, सम ऑफ प्रोजेक्शन Projection वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू operators. आइडेंटिटी। Hmm. मतलब आपने सारे पॉसिबल डायरेक्शन लिए या नहीं लिए? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Hmm. आप समझ रहे हो मैं जो बात कह रहा हूं? Hmm. जैसे अभी कल वाला प्रॉब्लम करूंगा, आज मैं क्लास अपना इसी के ऊपर रख रहा हूं, इन स्पाइट ऑफ दैट। चलो इतना नहीं बताना चाहिए, बट फिर भी मैं आप थोड़ा सा टाइम लो इस पर, ठीक है? समझने की कोशिश करो, फिर बाद में सोचना भी, ठीक है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां पर क्लियर हो गया ना? अब जरा सा, अब सपोज करो phi 1 को मैं ले लूं 1/√2 1 1 और phi 2 को ले लूं 1/√2 1 -1। चेक करते हैं ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर को, सॉरी ये हमारा कंप्लीटनेस रिलेशन को फॉलो करेगा या नहीं करेगा? सर हम्म अब ये सेकंड एग्जांपल का अगर प्रोजेक्शन फर्स्ट एग्जांपल के बेसिस पे करे तो वो भी ऑर्थोनॉर्मल हो जाएंगे, है ना? मतलब प्रोजेक्शन करेंगे इस ऑर्थोनॉर्मल बेसिस नहीं वेक्टर्स नहीं का। नहीं समझा क्या? मैं समझा नहीं मैं समझा नहीं, Does क्वेश्चन नहीं not समझा। satisfy, sir. Does not satisfy complete relation. पहला वाला तो कंप्लीटनेस रिलेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है भाई। Second one, हाँ, 5 1 अरे 1 and 1. हाँ नहीं मतलब वो नहीं कर रहा इसको। जब हम इसका प्रोजेक्शन उस पर करेंगे, जो सेकंड एग्जांपल में जो हमने बेसिस वेक्टर चूज किए हैं, ये नहीं ऊपर वाला, ये हाँ हाँ, और वो जो ऑर्थोनॉर्मल नहीं है जो फर्स्ट एग्जांपल में, उस पे हाँ। प्रोजेक्शन करेंगे तो वो ऑर्थोनॉर्मल हो जाएंगे। हैं? ये क्या है? प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑपरेटर वैसे ही काम करेगा। अरे भैया प्रोजेक्शन ऑपरेटर का काम तो है बस उस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करना,
और कंप्लीटनेस रिलेशन तो बिल्कुल दूसरी चीज है। साई इज इक्वल टू सिग्मा सी आई फाई आई केट। तो मतलब अगर हम पहले एग्जाम्पल के वाले को साई वन और साई टू ले लें तो फिर ऑर्थो तो नॉर्मल ऑर्थो में नॉर्मल बेसिस नहीं होगा ना भाई, वो प्रोजेक्शन हाँ। ऑपरेटर सॉल्व ही सेटिस्फाई नहीं करेगा तो कहां से दे पाएगा। आप अननेसेसरी कंफ्यूज क्यों करो, मुझे समझ में नहीं आया सर वो कह रहा है कि ये जो 5152 है भाई। अगर अरे वो कोई क्या कह रहा है, ये जब 5152 सॉरी 5151 प्लस 5252 इज इक्वल टू नॉट आई, तो साई को आप आई साई कैसे लिखोगे भाई? नहीं, ये नहीं पूछा। तो और क्या है? कोई नहीं सर, एग्जाम्पल आएगा बाद में तो समझ में आ जाएगा। नहीं नहीं, तुम अननेसरी कंफ्यूज हो और सबको कंफ्यूज कर रहे हो, ठीक है? अननेसरी यस झूठ सर। मूठ के कंफ्यूजन पैदा कर रहे हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिंपल सी बात है भाई, आपका टू डायमेंशनल स्पेस के लिए दो ही तो वेक्टर चाहिए होगा, बेसिस वेक्टर हाँ दो ही चाहिए होगा ना। अब आप अगर ये ले लो 1 1 1/√2 और 1 0 ले लो बेसिस वेक्टर, दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। आपके पास एक ही चॉइस ये है, एक चॉइस ये है, आप किस चॉइस को क्वांटम मैकेनिक्स में लोगे? हाँ, दूसरे वाले को लेंगे पर दूसरे वाले को अब लेकर, तो पहले वाले की क्या जरूरत है फिर उसकी? प्रोजेक्शन ऑपरेटर का आपने जैसे बताया कि काम वो कर रहा है कि वो अरे भाई, प्रोजेक्शन ऑपरेटर तो ये भी अकेले भी बनाएगा, ये भी अकेले बनाएगा। हाँ, पर वो ऑर्थो नॉर्मल में नहीं कन्वर्ट कर देगा ना उसको। कैसे कन्वर्ट कर देगा ऑर्थो नॉर्मल, जरा मुझे बताओ तो, करके देखो। खैर उतना टाइम नहीं है यार, कुछ भी थोड़ी डिस्कस करने लगूंगा। बता क्या रहा हूं, पूछ क्या रहे हो, कुछ भी थोड़ी हो जाता है यार। ये दोनों को चेक करते हैं, ये दोनों वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं? Yes, yes. यस, क्यों? क्योंकि ऑर्थोगोनल है ना। तो Hmm. ऑर्थोगोनल है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अब ये चेक करना है कि ये प्रोजेक्शन वेक्टर ऑपरेट सॉरी ये कंप्लीटनेस रिलेशन बनाएगा कि नहीं। बना रहा है सर। क्या हो जाएगा ये? हाफ 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 प्लस ये क्या हो जाएगा? हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ हाफ, है ना। दोनों को ऐड करोगे, व्हाट यू विल गेट? 1 0 0 1। यस, दिस इज आइडेंटिटी वेक्टर। तो मैं इसे भी अपना बेसिस वेक्टर ले लूंगा क्वांटम मैकेनिक्स में अगर जरूरत हुई तो। आर गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। भाई आपको चूज करना है कि कौन सा बेसिस वेक्टर लोगे। कैसे चूज करोगे? क्या उसके पीछे की साइंस है? ऐसे सपना देख करके चूज कर लोगे क्या? नो सर। आप क्या चूज करोगे? वो चूज करोगे कि वो कंप्लीटनेस रिलेशन बनाता है कि नहीं बनाता है। नहीं बनाता है तो उसको छोड़ दो कि यार ये मेरे काम की नहीं है। बना रहा है उसको हम लेंगे, मेरे काम की है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंप्लीटनेस रिलेशन। अब जो नहीं बना रहा है उसको कैसे बनाएंगे, ये हमारा काम नहीं है। और वो नहीं बनने वाला है, जो नहीं बना रहा है वो नहीं बनेगा, दैट्स इट। तुम्हारे ऐसे ऐसे देखने से थोड़ी बनने लगेगा। तो नाउ साई का डेफिनेशन तो पर वैसा ही है ना, साई इज इक्वल टू C1 फाई वन गेट। उसका मतलब क्या उस डेफिनेशन का? क्या? वो जो एक डेफिनेशन था ना, साई गेट इज इक्वल्स टू सिग्मा सी आई फाई गेट। अरे बाबा, साई इज इक्वल टू समेशन ओवर सी आई फाई आई, उसमें मैं फाई आई को ऑर्थो नॉर्मल रख रहा हूं, ये बार बार तो बोल रहा हूं। हाँ, और उससे फाई ऑर्थो नॉर्मल हो जाएगा, है ना। क्या?
उससे साई ऑर्थोनॉर्मल हो जाएगा ना। अरे साई क्या ऑर्थोनॉर्मल होगा? साई तो वेक्टर है यार। ऑर्थोनॉर्मल के लिए दो वेक्टर चाहिए ना, दो से ज्यादा वेक्टर चाहिए ना। यस सर। क्या बकवास कर रहे हो भाई? ये साई वेक्टर नॉर्मलाइज होगा या नहीं नॉर्मलाइज होगा, ये डिफरेंट इशू है। ये साई वेक्टर ऑर्थोगोनल कैसे हो जाएगा? ऑर्थोगोनल के लिए मिनिमम कितने वेक्टर होने चाहिए? दो। यार थोड़ा पढ़ लिख लिया करो प्रियम। बिना पढ़ाई लिखाई के बात नहीं किया करते हैं, मूर्ख की तरह नजर आते हैं उस समय। नहीं प्रिपरेशन है पढ़ाई की तो चुप होकर के सुना करो और उसको एक्सेप्ट किया करो। सारा डेफिनेशन शुरू में सिखा दिया हूं, उसके बाद भी इस तरह की गलती कर रहे हो। अब बताओ, ये बोल रहे हो साई ऑर्थोगोनल होगा कि नहीं होगा, मतलब कुछ भी बोल दो। गजब हाल है यार। अपना भी इंसल्ट कर रहे हो, सब्जेक्ट का भी इंसल्ट कर रहे हो। बिना लॉजिक के प्लीज मेरी क्लास में बात मत कीजिए। नहीं पढ़ाई कर पाते हैं, चुपचाप बैठे रहिए। नाउ अब देखो रियल प्रॉब्लम कहां आती है और क्यों ये कंप्लीटनेस रिलेशन का फायदा है। सर और हाँ बताओ। सर इज इट पॉसिबल दैट वी हैव, मान लीजिए कि हमारे पास दो बेसिस वेक्टर है जो हाँ ऑर्थोगोनल है, हाँ। बट दे आर नॉट फॉलोइंग कंप्लीटनेस रिलेशन। नो, इन जनरल ये नॉट। इन पॉसिबल है? जनरल नॉट, इन जनरल नॉट। अभी तक तो तो मैंने मतलब, देखा नहीं ऐसा। अच्छा अच्छा, अभी तक तो तो नहीं मतलब देखा। फाइनल गोल यही होगा कि कंप्लीटनेस चेक फाइनल करना। आपका अल्टीमेट लिटमस टेस्ट ही यही है कि आपका जो बेसिस वेक्टर है वो कंप्लीटनेस रिलेशन फॉलो करे। यस। देखो मैं समझा रहा हूं, मैं क्यों इस चीज को बता रहा हूं, ये देखो। देखो, अगर आपका आइगन वैल्यू, सपोज आप 3x3 मैट्रिक्स ले लिए और 3x3 मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज नॉन डिजनरेट है, सारे नॉन डिजनरेट है। ठीक है, आइगन वैल्यूज अगर आपके नॉन डिजनरेट है, तो अगर आइगन वैल्यू नॉन डिजनरेट है तो उसके आइगन वेक्टर ऑर्थोगोनल होंगे, है ना। यस सर। और उसके आइगन वेक्टर, सॉरी आइगन वेक्टर ऑर्थोगोनल होंगे और उसे आप जब चाहो तो नॉर्मलाइज कर सकते हो। यस। तो आपके पास क्या होगा, आपके पास सपोज 3x3 मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, 3x3 मैट्रिक्स, λ1 λ2 और λ3 आपके पास मिल गया है। और ये जो 3x3, इसके लिए आपके पास φ1 मिल गया है, इसके लिए φ2 मिल गया है, इसके लिए φ3 मिल गया है। तो और आपके पास ये भी है कि φi φj इज इक्वल टू डेल्टा ij। ठीक है, चूंकि ये नॉन डिजेनरेट था तो आपको पास 3 आइगन वैल्यूज मिल गए। तो 3 आइगन वैल्यू मिल गए तो आपको क्या नजर आ रहा है, 3x3 मैट्रिक्स। तो आपको 3 इंडिपेंडेंट और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स मिल गए, तो 100% कंप्लीटनेस रिलेशन फॉलो करेंगे। लेकिन सपोज करो कि अगर आइगन वैल्यू डीजेनरेट है, अगर आइगन वैल्यू डीजेनरेट है, जैसे कल की ही क्लास की बात करते हैं। कल की क्लास में हमारे पास आइगन वैल्यू क्या था, 1 1 और -1। ठीक है, यही था ना। हाँ अब सर। आपको Yes, ये sir. दोनों 1 तो सेम ही है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। आपको जो बेसिक इंफॉर्मेशन होगा, जो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिलेगा, वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा कि ये 1 1, तो आपको एक ही नजर आ रहे हैं 1। यस,
यस सर। एक 1 नजर आ रहा है और दूसरा क्या नजर आ रहा है, -1 नजर आ रहा है। तो कहीं आप ये 3x3 की मैट्रिक्स को गलती से 2x2 की मैट्रिक्स ना समझ लो, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती क्या? हो सकती है सर। Yes, sir. Yes, sir, possible. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो 3x3 की मैट्रिक्स है वो आपको लगने लगेगा कि अरे ये तो हो सकता है 2x2 उसी ही मैट्रिक्स है। तो वैसे केस में आप जब इसके आइगन वेक्टर्स निकालोगे और जब चेक करोगे कि ये कंप्लीटनेस रिलेशन नहीं बना पा रहा है ऑर्थोगोनल होते हुए भी, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, यार जरूर कुछ ना कुछ एक वेक्टर हमारा कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है, कुछ और। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। Yes, sir. या तो Yes. फिर और भी, चलो एक दूसरी बात कर देते हैं। चलो ये तो खैर बहुत ही डीप स्टडी है, इतना डीप की बात आपसे कोई नहीं करने जा रहा है। सपोज करो आपने -1 के लिए आपका आइगन वेक्टर क्या आया था, 1/√2। बताओ कल की क्लास से 0 1 1 यही आया था, ये 0 1 -1 है ना, आया था। यस सर। और 1 के लिए क्या आया था, एक 1 0 0 आया था और दूसरा क्या आया था 0 1 1 1/√2, यही आया था ना। 1/√2 यस सर। ठीक है, Yes, sir. दूसरा सेट जो लिया था उस दूसरे सेट में क्या लिया था, 1/√2 0 1 -1, ये तो इसके लिए होगा। इसके लिए क्या लिया था, एक सेट क्या लिया था जरा बताओ, जिसमें हाफ ले लिया था, हाफ √3/8 ना, हाँ सर। यही था। √3/8 एंड √3/8। हाँ ठीक है, और एक और के लिए क्या लिया था ये जरा बताओ, मुझे याद नहीं है। सर, -4 √3/8। -4 √3/8। -√3/2 था, है ना। यस और क्या था, 1/√8। 1/√8। वेरी गुड, 1/√8। यस। चलो अब सपोज करो गलती से आपने क्या किया, ये तो सारे लोग का सेम रहेगा है ना, क्योंकि ये जितनी बार भी निकालोगे सेम आएगा, नॉन डिजेनरेट। अब सपोज करो किसी ने एक आइगन वेक्टर ये ले लिया phi2 और दूसरा आइगन वेक्टर ये ले लिया phi3। क्लियर है ये भी तो आइगन वेक्टर है, Yes, sir. यस सर। ये भी तो आइगन वेक्टर है। यस सर। ठीक है, अब ये आइगन वेक्टर लेने के बाद आप बोलोगे कि भाई मैं बेसिस अपना इससे इससे और इससे बनाऊंगा। आर गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो क्या वो बेसिस वेक्टर क्वांटम मैकेनिक्स में काम के होंगे? No. No, No, sir. नहीं No, sir. होंगे, क्योंकि आप चेक करोगे ये और ये तीनों कोई कंप्लीटनेस Orthogonal. रिलेशन नहीं डू बनाएगा। नॉट फॉलो द रिंग। Not or ठीक है, not orthogonal, sir. नॉट ऑर्थोगोनल। भाई नॉट ऑर्थोगोनल है तो उससे क्या डिफिकल्टीज हो रही है, Not यू ortho- कैन नॉट मेक कंप्लीटनेस रिलेशन। Yes. तो अगर आपको कंप्लीटनेस रिलेशन बनाना होगा तो आपको बेसिस वेक्टर या तो ये चूज करोगे या तो ये चूज करोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. तो Yes, साई sir. को आइदर इन तीनों के बेसिस में लिखोगे या फिर इन तीनों के बेसिस में लिखोगे। समझ में आ रहा है ये? यस सर। Yes, sir. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या तो इन तीनों के बेसिस, भाई अगर आपका नॉन डिजेनरेट होता तो यूनिक बेसिस मिलते हैं आपको, ठीक है, लेकिन डिजेनरेसी के कारण आपको यूनिक बेसिस नहीं मिल रहे हैं। लेकिन एक चीज का आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि आइदर हमारा बेसिस वेक्टर ये तीनों मिलकर बनाएंगे या फिर ये तीनों मिलकर बनाएंगे, क्योंकि ये तीनों मिलकर ही कंप्लीटनेस रिलेशन बनाएंगे और ये तीनों मिलकर ही कंप्लीटनेस रिलेशन बनाएंगे। अब चीजें क्लियर हुई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. समझ रहे हो? तो ये एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात मिल गई आपको। वो इंटरेस्टिंग बात क्या है वो मैं आपको लिखवा रहा हूं, जो कल की क्लास से डायरेक्ट रिलेटेड है। अब आपको समझ में आ गया कि क्वांटम मैकेनिक्स में क्यों ऑर्थोगोनल वेक्टर ही चूज करना है, Completeness relation. क्योंकि वो कंप्लीटनेस रिलेशन बनाएगा और आपके काम को आसान कर देगा। ठीक है, Yes, sir.
नाउ सो लिखो, इफ आइगन वैल्यूज आर नॉन डिजेनरेट, then there is unique, ओह क्या बात है, unique set of ortho normal vectors. अगर आइगन वैल्यू नॉन डिजेनरेट मिल रहे हैं, चिंता नहीं करना है भाई, सारे लोगों का बेसिस वेक्टर क्या होगा, सेम ही रहेगा। लेकिन if eigen values are degenerate, then there is possibility of infinite set of ortho normal vectors. ठीक है, देयर आर इन्फिनाइट सेट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। सो वहां पर कितने तरह के बेसिस वेक्टर मिल सकते हैं आपको ऑर्थोनॉर्मल? इनफाइनाइट इन्फिनाइट। लेकिन ब्यूटीफुल बात यह होगी कि सपोज करो सौबिक इस सेट में प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, उसका भी आंसर सही होगा। क्यों सही होगा? वो सारे ऑर्थोनॉर्मल क्योंकि वो कंप्लीटनेस रिलेशन बनाएंगे। यस सर। सपोज प्रियम इस सेट में इन तीनों सेट को लेकर के अपनी बेसिस वेक्टर बना रहा है, उसके भी आंसर सही होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि ये Yes, तीनों sir. भी क्या करेगा, बेसिस वेक्टर्स ऑर्थो कंप्लीटनेस रिलेशन बनाएगा। आपके लिए होमवर्क है, जरा चेक करो ये सेट बेसिस वेक्टर बना रहा है कि नहीं, और ये सेट भी ये सेट कंप्लीटनेस रिलेशन बना रहा है या नहीं, और ये सेट कंप्लीटनेस रिलेशन बना रहा है या नहीं। दोनों ही सेट कंप्लीटनेस रिलेशन बनाएंगे। अगर दोनों ही सेट कंप्लीटनेस रिलेशन बनाते हैं तो आप साई को चाहो तो इसमें पूरा बेसिस में लिख दो और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करो, इसके बेसिस में लिख दो और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करो। डिजेनरेसी क्वांटम मैकेनिक्स की सबसे बड़ी हेडेक है। नॉन डिजेनरेसी है तो कूल रहो, आराम से कूल रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रही है। लेकिन डिजेनरेसी आते ही पूरी की पूरी चीजें एकदम तबाह हो जाती है। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन हिडन हो जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप लोग सारे लोग तो एमएससी वगैरह तो किए होगे ना? तो हाइड्रोजन एटम की एनर्जी की कंप्लीट स्प्लिटिंग को देखने के लिए क्या करते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। पहले मैग्नेटिक फील्ड, पहले उसके अंदर एक रिलेटिविस्टिक करेक्शन देखते हो, है ना? फिर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो एक्स्ट्रा, फिर क्या करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करते हो। ऐसा क्यों करते हो? ऐसा इसलिए करते हो कि उसकी डीजेनरेसी को क्या कर सको, ब्रेक कर सको। जैसे जैसे डीजेनरेसी ब्रेक होती जाएगी आपको नए नए इंफॉर्मेशन मिलते जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस ठीक है। और जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी आप सिस्टम के उतनी ज्यादा सिमेट्री को एनालाइज कर पाओगे। आर यू गेटिंग दिस थिंग? यस सर। क्लियर है ना? So this is a very, very important thing from the tools of quantum mechanics point of view. So tomorrow we will go for different types of problems. ठीक है? कल कुछ नया नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे। तो प्रॉब्लम बताओ क्या क्या करेंगे? पहले एक बार रिवाइज तो कराऊं, क्या क्या करोगे बताओ? किस किस तरह के प्रॉब्लम करेंगे? ऑपरेटर्स के ऊपर। सर ऑपरेटर्स। पहले ऑपरेटर्स ही कर लेंगे। वाह भाई वाह। वेरी गुड। नॉर्मलाइजेशन से शुरू करेंगे, ऑर्थोगोनलिटी करेंगे, और क्या करेंगे? एक वेक्टर को दूसरे के बेसिस में लिखने की कोशिश करेंगे, है ना? यस सर। ये सारा करेंगे। फिर क्या करेंगे? आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स के प्रॉब्लम करेंगे,
और क्या करेंगे फिर? स्क्वायर इंटीग्रल। हाँ, सॉरी, स्क्वायर इंटीग्रेबिलिटी नॉर्मलाइजेशन सेम ही चीज है, ठीक है। इस तरह के प्रॉब्लम को कल करने की कोशिश करेंगे। सो एक क्लास हम लोग बेसिक प्रॉब्लम पर देंगे एंड देन वी विल गो फॉर पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। सो उसके बाद आपका क्वांटम मैकेनिक्स शुरू होगा। यहां तक आपने लैंग्वेज सीख लिया, आपने बेसिक मैथमेटिक्स सीख लिया, क्वांटम मैकेनिक्स में कैसे बात करते हैं वो थोड़ा बहुत सीख लिया। अब इसको कैसे रूल्स इसके बनाएंगे वैसे वो सीखेंगे। तो ऑब्वियसली आपको सबसे पहले क्या सीखते हो? अल्फाबेट सीखते हो ना। यस सर। Yes, sir. एक यस सर। माँ सपोज करो तुम्हें मैं बोलूं कि फ्रेंच की स्टोरी बुक पढ़नी है, तो सबसे पहले क्या सीखोगे? ABCD। Language. फ्रेंच फ्रेंच की अल्फाबेट सीखोगे, है ना। उसके बाद क्या सीखोगे? Words वर्ड formation. वही लेटर्स। अल्फाबेट एंड वर्ड्स फॉर्मेशन इज सेम थिंग। उसके बाद उसकी ग्रामर सीखोगे, है ना। यस सर। ठीक है। और वो जो भी ग्रामर और अल्फाबेट वर्ड फॉर्मेशन इन दोनों को मिला करके आप सारी स्टोरी समझ सकते हो। सो अगला हमारा काम क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स की ग्रामर को सीखना, ठीक है। यस सर। है ना। दैट इज गिवन बाय Yes, sir. पोस्टुलेट्स ऑफ, बट उससे पहले एक क्लास प्रॉब्लम सेशन क्लास कर लेंगे, ठीक है। ओके, यस सर। चलो आज के लिए इतना ही। नमस्ते सर। थैंक यू सर। नमस्ते नमस्ते। प्लीज रिवीजन सर। कीजिए और बहुत ही इंटेंस रिवीजन Yes, कीजिए, है ना। सर हाँ बोलो। सर क्या आप अपने कल का लेक्चर शेयर कर सकते हैं? कल का लेक्चर अभी तक आपका शेयर नहीं हुआ है? यस सर, अभी तक नहीं हुआ। कल यस सर 16। अभी तक शेयर नहीं हुआ है लेक्चर आपका? कर देता हूँ, शेयर करता हूँ, देखता हूँ। थैंक यू सो मच सर। तो बोलो। हेलो, हम्म। तो मुझे ना वो जो आपने डीजेनरेसी वाला जो पार्ट समझाया है ना, वो मैं सॉल्व कर रही थी, बार बार उसमें फंस रही। जैसे आपने कहा कि हम लोग एक जो डीजेनरेसी होता है उसे तो हम आर्बिट्रली ले सकते हैं, लेकिन सेकंड वाले में हमें देखना होता है। तो वो वाले पार्ट में मैं अभी भी फंस गई हूँ। अभी तक क्लियर नहीं हुआ है? अभी क्लियर कर नो देता हूँ। सर, मतलब फंस कर रही थी तो। देखो देखो, ये ऐसे देखो, समझने की कोशिश करो, बहुत आराम से समझो। जिन बच्चों का हो गया है वो जा सकते हैं, डोंट वरी। जिनका डाउट्स है वो रुक सकते हैं, ठीक है। देखो, ये एक बोर्ड है तुम्हारा, मिनल नाम है ना तुम्हारा? हेलो, यस सर। यस चलो सर। मिनल ही नाम है ना। यस सर। गुड। ये बोर्ड है, क्लियर है ये। इस बोर्ड पर कितने sir. वेक्टर्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वेक्टर। और ये एक वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोर्ड है, ठीक है। यस सर। तो इस बोर्ड पर जितने भी वेक्टर होंगे वो इसके परपेंडिकुलर होंगे। यस सर। ठीक है। तो आप ये एज्यूम करोगे कि ये नॉन डिजेनरेट वाले का वेक्टर है और इस पर जितने भी वेक्टर है वो डिजेनरेट वाले का वेक्टर है, ठीक है। यस सर। ठीक है। क्यों डिजेनरेट वाले का वेक्टर सेम प्लेन में है? क्योंकि उसकी फॉर्मुलेशन एक ही जैसी है, A1 B1 A1 जैसे कैसे था, A1 B2 B2 एंड ऐसा था ना। सर A1 B2 A1 B2, A2 A2। हाँ Yes. A1 A2 A2 ऐसा था। हाँ सर। तो सारे वेक्टर का सेम फॉर्मुलेशन है तो सेमी प्लेन पर तो होंगे वो, ठीक है। यस सर। ठीक है। अब इसमें से आपको कोई वैसे दो वेक्टर चूज करने हैं जो आपस में परपेंडिकुलर है, इसमें से जो इस प्लेन पर है। तो किसी एक को तो आप चूज कर सकते हो ना आर्बिट्रली, ठीक है। यस सर। तो आपने सपोज करो इसे चूज कर लिया आर्बिट्रली, जिसे आप phi1 कह रहे हो, ठीक है। और इसे आपने कर लिया 1 0 0, ठीक है। अब क्या दूसरा वेक्टर आप आर्बिट्रली चूज कर लोगे क्या? नो सर। नहीं, उसको इसके साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए ना। यस सर। तो वो वाला वेक्टर तो ऐसा ही होगा, तभी तो होगा परपेंडिकुलर, नहीं? हाँ सर। ठीक है। इसे मैंने नॉर्मलाइज भी कर लिया, इसलिए वो 5 1 0 0 आपने ले लिया। तो ये वाला वेक्टर का फॉर्म कैसा है? A1 A2 के जैसा फॉर्म है, ठीक है ना। यस सर। इसका भी फॉर्म वैसा ही है।
लेकिन ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए? ऑर्थोगोनल होने चाहिए, हाँ सर। होने चाहिए ना? हाँ सर। ठीक है, जब ऑर्थोगोनल होने चाहिए तो क्या होगा? फाइव वन फाइव टू मस्ट बी जीरो होना चाहिए। 0। हाँ सर। तो अब यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? 100, A1 A2 A2 मस्ट बी इक्वल टू 0। सो A1 की वैल्यू 100% क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। 0 होगी। ठीक है, सो A1 की वैल्यू 0, A2 और A2। तो ऐसा जो भी वेक्टर होगा वो इससे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, है ना? हाँ सर। ऑर्थोगोनल होगा। हाँ सर। अब आप क्या करोगे? A2 की वैल्यू निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? नॉर्मलाइज भी चाहिए आपको, हाँ सर। तो नॉर्मलाइजेशन से निकाल लो। पाई टू इज इक्वल टू 1। क्लियर है ये? हाँ सर। तो अगर आपके पास डबली डिजेनरेसी है तो आप कितने आर्बिट्ररी वेक्टर चूज कर सकते हो? एक। सर एक। अगर आपके पास ट्रिपली डिजेनरेसी है तो कितने आर्बिट्ररी वेक्टर चूज कर सकते हो? तो भी एक ही कर सकते हैं ना? एक दो को चूज किया, दो फिर तो दो चूज कर लोगे ना। एक को पहले के साथ कर लिया, फिर दूसरे को एक चूज किया, फिर पहले को एक इसके साथ किया, फिर दूसरे को भी किया, है ना? हम्म। ठीक है, सो बट आप 3x3 तक ही रहो, 4x4 में जाने की उतनी जरूरत नहीं है। आर गेटिंग माई पॉइंट? अब समझ में आ गया? यस सर, नाउ इट्स आप क्लियर। चाहो तो दूसरा भी चूज कर सकते थे, 1 1 1 भी चूज कर लो। नहीं, ये भी तो उसी तरह है। नहीं हो सकता क्या? हो सकता है सर। हो सकता है, लेकिन अगर जो ये चूज करोगे तो दूसरा यही वाला थोड़ी होगा। जैसे यहां से निकालोगे तो 0 A2 थोड़ी होगा, वो कुछ और होगा, है ना? यस सर। तो अब क्लियर हो गया? हाँ सर, ठीक है, क्लियर है। सो बेसिकली एक को आप आर्बिट्रली चूज करो और दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल रिलेशन लो, जितने भी बाकी हैं डिजेनरेसी में। ठीक है, यस सर। और फिर लास्ट में एक क्या मिलेगा आपको? नॉर्मलाइजेशन का रिलेशनशिप। ठीक है, जी। तो उसके बाद आपका आंसर हो जाएगा, है ना? कल जो प्रॉब्लम दिया था उसको करो। हाँ जब सर, वो उस किया प्रॉब्लम वहां में पे दो मैं वैल्यूज फंस जीरो गई। जीरो आ रही है। नहीं, दो वैल्यू आपके पास यही तो आ रहा होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 0, यही आ रहा है ना? यस सर। हाँ। भाई आप इसमें चूज कर लो, 1 0 -1, एक सेट ये हो गया आर्बिट्ररी वाला। अच्छा, हाँ, ओके सर। अब इसको नॉर्मलाइज करोगे तो क्या होगा? 1/√2 आ जाएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। नहीं, यस सर, ठीक। दूसरा चूज कर लो, 1 2 -3। नहीं यस सर। भाई, इसको तो हजार तरीके से रिलेशनशिप बना सकते हो, नहीं बना सकते क्या? यस सर। तो बना सकते थे। बना तो सकते आप कुछ भी चूज कर लो, और फिर जब एक और वेक्टर जब चूज करोगे तो उसमें लिख दोगे A1 A2 और A1 प्लस A2 विद द माइनस साइन। ठीक है ना? अब इसको जो भी तुम चूज करो उसके साथ ऑर्थोगोनलिटी रिलेशन ले लोगे तो A1 और A2 के बीच का रिलेशनशिप आ जाएगा। नहीं, यस सर। तो उस तरह कर लो अपना आराम से। सर, हम्म ये स्टेटमेंट सही है क्या? कोई दो वेक्टर्स कंप्लीटनेस रिलेशन फॉलो कर रहे होंगे तो वो ऑर्थो नॉर्मल और ऑर्थोगोनल दोनों होंगे ना? अरे मतलब वो इतनी देर से तो स्पेशल यही तो बोल रहा हूँ भाई। वही सर कंफर्म करे वैसे। ठीक है, चलो, थैंक यू। थैंक यू सर। सर सर थैंक यू सर। बोलो बोलो। सर अब क्या हम वो टूल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के सारे प्रॉब्लम कर सकते हैं पीवाई के? बिल्कुल, अभी कम्यूटेशन वगैरह मत करना। ठीक है, अभी जो मैं करवा रहा हूँ सिर्फ वो करो। ठीक है, एक बार पॉस्टुलेट्स हो जाएगा तो छोड़ दूंगा खुला आपको। ठीक है, ओके सर। अभी जो मैं करवा रहा हूँ सिर्फ वो करो। ठीक है, फिर मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, पहले कौन सा करना है फिर कौन सा करना है, फिर या फिर यही कर दूंगा आपको, क्योंकि किसी के पास ओल्ड मटेरियल होंगे, किसी के पास न्यू होंगे, तो मैं क्वेश्चन ही आपको फोटो खींच के भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, एक साथ दे दूंगा, उसी को कर लेना। ठीक है, सर चलो, हमारे पास जो न्यू मटेरियल है उसका हम सॉफ्ट कॉपी मिल सकता है? सारा मिल जाएगा, सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा। ठीक है, अभी नहीं, अभी मैं उस पर थोड़ा काम कर रहा हूँ नए मटेरियल पर, वो सितंबर में मिलेगा। ठीक है, ओके सर थैंक यू।
सर मुझे एक डाउट था। बोलो। सर मैंने कल की क्लास अटेंड नहीं करी थी, इसलिए अभी की क्लास को देखते हुए मुझे एक डाउट था कि आपने कहा कि आइगन वैल्यू अगर नॉन डीजेनरेट होंगे किसी भी हैमिल्टोनियन के, राइट? तो हैमिल्टोनियन के नहीं, एक मिनट, अभी हैमिल्टोनियन वर्ड मैंने नहीं यूज किया, किसी भी ऑपरेटर के। किसी, ओके सर, किसी भी ऑपरेटर के। तो हमें यूनिक सेट मिलेगा। यूनिक सेट मतलब जैसे कि मैं एक ही कुछ सेट मिलेगा, एक ही ऑर्थोनॉर्मल सेट मिलेगा बस। ओके सर, ओके। लेकिन जब अभी हमने करा, हमने 10 एंड 01 लिया 2D के लिए, एंड ये भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, एंड 1/√2 1 1 एंड 1/√2 1 - 1 लिया, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है 2D के लिए। तो मतलब क्या ये नॉन डीजेनरेट के उसमें आएगा? नहीं नहीं, ये तो मैंने तुम्हें, देखो सिंपल सी बात है, आपके पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, यस ठीक है। सर। अब ये मैट्रिक्स डिसाइड करेगा कि उसकी आइगन वैल्यू डिजेनरेट है या नॉन डिजेनरेट है। क्लियर है ये? अगर यस सर। उसके आइगन वैल्यू डिजेनरेट हैं तो आपके पास इन्फिनाइट सेट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स मिल सकते हैं, ओके ठीक ओके, है। आई गॉट इट। मतलब हमारे पास स्पेस में बहुत सारे ऑर्थोनॉर्मल है हाँ, जो हमारी बेसिस अच्छे से दे सकते हैं, जो सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन हमारे ऑपरेटर के हिसाब से हमें ऑपरेटर के कुछ हिसाब से, भी वेरी गुड। कंडीशन। सारा ओके चीज ये डिसाइड करेगा कि तुम्हारा ऑपरेटर कैसा है, ठीक ओके है। सर, गॉट इट। ऑपरेटर ही के अंदर सारी चीजें छुपी हुई है ना। ओके सर। तो वो ऑपरेटर ही बताएगा कि तुम्हें कौन सा बेसिस वेक्टर लेना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, यस सर। ठीक है, ओके सर, वो थैंक यू। ऑपरेटर के अंदर ही सारी कहानी छुपी हुई है, ठीक है। वेरी गुड यस सर, क्वेश्चन, क्लियर। वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू सर। ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, थैंक यू सर। थैंक यू।